Hey everyone, welcome to the eLearnu. In today's video, we're going to learn about the use of heading tags and paragraph tag in HTML. Okay, so let's get started. So this is our HTML playlist folder which I have created. Okay, so I'm right click on it and open this folder with code. Okay, so this is basically okay. In this VS Code file, I have created new file that we call heading and para.html. Okay, I have created this file. Okay, here heading and para, I am named this so because I remember that I have covered this topic in that particular web page. Okay, .html is basically extension for saving any HTML file. Okay, I hope you guys got that. I hope you guys got that. Okay, now first of all, I have to write a boilerplate code. Okay, which is mandatory to write any HTML document. Okay, you guys know, remember I have show you a shortcut to write a boilerplate code. The shortcut is HTML semicolon and press enter. Okay, you can see the boilerplate code is appear on your screen. Okay, I have tell you the meaning of each and every tag in this boilerplate code in the previous video. Okay, I have write the title of my web page is heading and paragraph. Okay, okay, so this is basically the title of my web page. Okay, any content that I write that I want to appear in on my web page is right inside that body tag. Okay, this body tag will contain the content. Okay, anything that I have write inside that body tag, it will be showing on my web page. Okay, so first of all, for example, I have write something called something called help here. Okay, so according to this help is appear on my web page. Okay, first of all, I have seen my web page by right click on it and open with live server. Okay, you can open with this also. You can open with by clicking this go live button. Okay, go live button पे click करके भी आप live जा सकते हैं और you can see your result. Okay, it may take some while. Okay, you can see it will appear like that. Okay, first of all, I have divided the screen in two parts. Okay, so this is basically okay. I have shrink it. Okay, so this is basically the title of my web page, that is heading and paragraph, is appear at that title corner. And okay, and the content inside the body tag is appear on the web page. Okay, the content that I have write inside this body tag will appear on this web page, this white page. Okay, web page. Okay, so I hope all that all is clear. Okay, so the main thing that I have covered in today's video is the heading tag and the paragraph tag. So okay, so heading tag in HTML is basically used to write the headings. Okay, we have overall 1 to 6 headings. Okay, ranges 1 to 6, H1, H2, H3, H4, H5 and 6. Okay, the H1 is the highest heading and H6 is the least heading. Now what do you mean by highest heading and least heading? You can show by your, you can see by your own self. Okay, I'm writing H1 over here. Okay, I'm writing here something like welcome to the HTML course. Okay, now I do what I have do copy it. I copy it and I paste it. I'm pasting it. I'm pasting it. I'm pasting it. Okay, again I'm doing paste. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, okay, you can see जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे आउटपुट दिखता जा रहा है. ओके, जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे आउटपुट दिखता जा रहा है. ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग दैट वी वांट उसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ओके, द मेन थिंग दैट इज H2 यहाँ पे लगा दिया. ओके, H3 यहाँ लगाया, इसको H3 कर दिया. ओके, इसे H4 कर दिया, इसे भी सिमिलरली H4 हमने कर दिया. इसे H5 करते हैं हम, इसे भी H5 करते हैं. You can see the difference in the web page. You can see the difference in the web page. Okay, so this is basically the difference. I hope बिना टेल किए बिना बताए मैंने आपको हेडिंग्स समझा दी कि हेडिंग क्या होती है. ठीक है, तो हेडिंग्स बेसिकली आपके वर्ड्स हेडिंग को फॉन्ट देती है. H1 इज द हाईएस्ट फॉन्ट हेडिंग.
ओके एंड H6 इज द लीस्ट फॉन्ट हेडिंग, ठीक है, आपको समझ होगा लीस्ट साइज फॉन्ट, H6 इज लीस्ट साइज फॉन्ट एंड H1 इज हाईएस्ट साइज फॉन्ट. ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट, आई होप यू गाइस गॉट दैट. सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने पेजेस पे, अपनी हेडिंग्स पे, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो. इफ यू वांट योर टेक्स्ट टू बी अपीयर इन वेरी लार्ज बिग font then you can use H1. If you want your text to appear in least font, then you can choose H6. Okay, if you want your text to be appear in mediator font size, then you can choose H2 or H3. Okay, I hope you guys got that, I hope you guys got that. Okay, now what you can do if you want your heading to appear in center, right और लेफ्ट. ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपके H1 टैग्स जो होते हैं उनका अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ होता है, आपको दिख रहा होगा सारे लेफ्ट में आ रहे हैं. बट वट इफ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग सेंटर पे दिखाई दे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस मुझे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, अलाइन. अलाइन एक एट्रीब्यूट है जो आपके हेडिंग को अलाइन कर देता है जहां आप डालते हैं वहां पे. आई हैव राइट सेंटर, तो इसने मेरी हेडिंग को सेंटर अलाइन कर दिया. इफ आई हैव राइट लेफ्ट, इफ आई हैव राइट गिव द अलाइनमेंट इक्वल टू लेफ्ट, अगर मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया होता, अगर मैंने इसे लेफ्ट अलाइन किया होता, so see, wait a minute, what's the thing going on here? Okay, so this is basically I have to refresh it. Okay, okay, so see, I have aligned left, तो left में ही है. If I have to align it right, I have aligned it right, so you can see the difference, it will goes to the right. I hope आपको अलाइन एट्रीब्यूट समझ आया होगा कि किस तरीके से फंक्शनिंग करता है हेडिंग में. ओके, सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द हेडिंग टैग. ठीक है, H1 से ले तक H6 तक की इनकी रेंज होती है. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जिस साइज फॉन्ट साइज में आपको अपना टेक्स्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो. जिस अलाइनमेंट में आपको करना है, आपको सेंटर में चाहिए आप सेंटर में टेक्स्ट कीजिए, आपको राइट में चाहिए राइट में कीजिए, आपको लेफ्ट में चाहिए आप लेफ्ट में कीजिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन अलाइन दी हेडिंग. Okay, I hope you guys got that, I hope you guys got that. Okay, now after the heading tag, our main thing is paragraph tag. Okay, what's the paragraph tag is? Okay, but before the paragraph tag I have tell you कि मेरा साथ साथ लिखते लिखते ही आउटपुट कैसे आ रहा है. जैसे मैंने ये लिखा, ओके, तो आप देख रहे हो साथ के साथ अब मुझे आउटपुट शो हो रहा है. हाउ दिस थिंग कैन बी डन? ये मेरे साथ का, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, मैंने सेव नहीं किया, बट मुझे साथ साथ आउटपुट दिख रहा है. ओके, मैं ऐसे कर कुछ भी लिख रही हूँ, मुझे साथ साथ आउटपुट दिखता जा रहा है. ठीक है, तो हाउ दीज थिंग्स बी डन आपको भी दिख सकता है. आप देखो, अगर आप इसे करोगे ना तो आपको साथ साथ आउटपुट नहीं दिखेगा, बिकॉज यू डिडंट डू दैट फीचर, आपने वो फीचर ऑन नहीं करके रखा. तो द फीचर इज व्हाट, कि आप अपने VS कोड में चाहिए, आपको 3 लेयर्स डॉट्स दिख रही है यहाँ पे, फाइल पे आप क्लिक करेंगे एंड हियर इज अ बटन दैट इज कॉल्ड ऑटो सेव. ठीक है, ऑटो सेव पे क्लिक करते ही आपका जो कंटेंट है अपने आप ही सेव हो जाएगा. यू नो लॉन्गर नीड टू प्रेस अगेन एंड अगेन कंट्रोल एस. ओके, अब देखो मैं इसे ऑफ कर लेती हूँ, तो मैंने ऑफ कर दिया. ओके, आई एम राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, it doesn't show on my web page because I didn't save it. if I am doing control s से सेव, तब मुझे ये दिख रहा है. ओके, मैंने अभी सेव किया था तभी मुझे ये दिखा. ठीक है, सो ऑटो सेव फीचर क्या कर रहा था, मेरा अपने सेव करने का काम खुद ब खुद कर दे रहा था. जैसे मैं कुछ लिख रही थी वो उसके पास खुद सेव कर दे रहा था, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा था विदाउट pressing control s. Okay, so this is basically beauty of the VS code. Okay, so आप इस पे जाइए, फाइल पे क्लिक कीजिए और ऑटो सेव पे क्लिक कीजिए ताकि आप कंटेंट अपने आप लिखते ही भैया सेव हो जाए. ओके, एंड इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. इससे क्या होगा, इससे इट विल easier फॉर यू गाइस टू see the output, see the result instantly as you code. Okay, to find the mistake instantly as you code. Okay, I hope you guys got that, I hope you guys got that. Now let's understand what's the paragraph tag is. So paragraph tag is basically used in HTML to write the paragraph. Okay, so आप कहोगे यार मैम पैराग्राफ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ भी लिख दिया, suppose lorem 11 12. Okay, so this is basically a paragraph is appear on my screen, तो ये इससे भी तो मैंने पैराग्राफ लिख दिया. What's the need of the paragraph tag? Okay, so if you write this paragraph, suppose आपको एक दूसरा paragraph लिखना है, okay, you have write the different paragraph, but it will appear as a single paragraph in the web page.
पर क्यों सिंगल पैराग्राफ क्यों आ रहा है? भाई मैंने तो डिफरेंट पैराग्राफ लिखे हैं, दो अलग अलग पैराग्राफ लिखे हैं, बीच में स्पेस भी लगा दिए. Why it appearing me as a single paragraph in the web page? Because HTML doesn't consider the white spaces. HTML इन white spaces को consider नहीं करता, उसको नहीं, वो consider नहीं कर रहा है इस space को, उसके लिए तो आपने एक ही paragraph में लिखा है. So paragraph tag is basically used to distinguish between, to separate the paragraphs. It means if I'm writing here p tag, if I'm writing here p tag and I'm put my content, and put my content inside it. Okay, मैंने इस content को इसके अंदर रखा तो ये it will treat it as a one paragraph. Okay, you can see the difference, it will treat it as one paragraph. Okay, I hope you guys got the different understanding of the paragraph tag. Okay, so paragraph tag also have the correct attributes like align. If you want to align the paragraph in the center, you can just use align equals to center. Wait a minute for guys, wait a minute. Okay, you can align it center. Okay, this is basically, okay, you can just see the paragraph is aligned towards the center. Okay, same thing goes on here. If you I am putting that particular paragraph in the p tag. Okay, so this will also consider in our paragraph. I want this paragraph to be start from the right, so I am giving the alignment right. Okay, so I'm giving the alignment right, so you can see the paragraph start from the right. I can show you guys, maximize it. Okay, you can see the paragraph start from the right. Okay, I hope you guys got that thing, I hope you guys got that. Okay, now wait a minute. Okay, so this is basically the thing that goes on. Okay, now I wanted to tell you one main thing or, okay, the thing is the use of the line break tag. Line break tag, that is br tag. See, I have write a paragraph over here, मैंने और बड़ा paragraph लिख दिया. Let's suppose, wait a minute, what's that? Let's suppose मैंने और बड़ा paragraph लिख दिया यहाँ पे. Okay, दिस इज व्हाट वी डू. मैंने और बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है. एंड आई वांट कि भाई ये लॉरम जो लिखा है ना यहाँ पे, इस लॉरम से ये लॉरम जो है ना, यहाँ से मेरा कंटेंट दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट हो, मतलब दूसरी लाइन से स्टार्ट हो. पैराग्राफ तो सेम हो बट लाइन दूसरी हो, लाइन नीचे हो. तो व्हाट द थिंग आई हैव टू यूज द br tag. br tag इज बेसिकली द लाइन ब्रेक. ठीक है, ये जो ये एक अकेली लाइन है ये इसको ब्रेक कर देगा. ठीक है, तो देख लो भैया, लॉरम दूसरी लाइन से लिखा हुआ आ रहा है. हाँ देखो, दूसरी लाइन से लिखा हुआ आ रहा है. पैराग्राफ अलग नहीं है, पैराग्राफ एक ही है. यू कैन सी द डिफरेंस, पैराग्राफ एक ही है बट लाइन अलग है. देख लो, लॉरम मेरा और ये एक्सर्सिटेरियन जो भी है वर्ड, ये यहाँ पे है. ओके, आई होप यू गाइस गॉट द डिफरेंस, आई होप गॉट द डिफरेंस. अब देखो, तुम कहोगे यार पैराग्राफ अलग है. नहीं, पैराग्राफ अलग नहीं है. देखो, पैराग्राफ सेम है पर से ये लाइन ब्रेक कर दी. ठीक है, अगर आपको इसका देखना है तो अगर मैं यहाँ पे पी टैग क्लोज कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नया पी टैग खोल लूँ, तो अब देखो पैराग्राफ अलग होने का क्या मतलब होता है. पैराग्राफ अलग होने का मतलब होता है देयर इज अ डिफरेंस इन द लाइन के बीच में गैप आ जाना. ठीक है, ये नहीं था वहाँ पे. वहाँ पे क्या था, लाइन नीचे आ गई थी. दैट इज बी यूज ऑफ द बी आर टैग, ब्रेक टैग. ठीक है, ब्रेक टैग इज बेसिकली द लाइन ब्रेक टैग. इट विल ब्रेक द लाइन. ओके, जहाँ से मैंने लगाया उसके बाद की लाइन ब्रेक हो जाएगी. मतलब कि अगर ये इसको एक सिंगल लाइन कंसीडर कर रहा था तो बी आर टैग लगाने से क्या हुआ, इसने इस लाइन को दो भागों में बांट दिया. पहला भाग ये रहा, ठीक है, दूसरा भाग यानी कि दूसरा पार्टीशन आपका ये है. ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट दैट पॉइंट. ओके, आई होप इट्स क्लियर. ओके, नाउ एक थिंग जो तुमने नोटिस की होगी कि यार बी आर टैग ना क्लोज नहीं हुआ. ठीक है, बी आर टैग क्लोज नहीं हुआ. आपने देखा पैराग्राफ टैग मैम ने लगाया, पैराग्राफ टैग को मैम ने क्लोज भी किया. ठीक है, बॉडी टैग मैम ने लगाया तो बॉडी टैग को मैम ने क्लोज भी किया. ठीक है, एच टी एम एल टैग मैम ने लगाया तो एच टी एम एल टैग मैम ने लगाया तो एच टी एम एल टैग को क्लोज कर दिया गया. ठीक है, हेड टैग लगाया तो हेड टैग को क्लोज किया गया है, बॉडी टैग लगाया तो बॉडी टैग को क्लोज किया गया है. पर बी आर टैग को क्लोज क्यों नहीं किया गया? ठीक है, बिकॉज बी आर टैग इज बेसिकली एन ओपनिंग टैग. Okay, it does not require a closing tag. ठीक है, because see,
बीआर टैग का मेन काम होता है कि लाइन को ब्रेक करना। इफ इट इज अ लाइन, इफ दिस इज अ लाइन, ओके, इफ दिस इज अ लाइन, सो बीआर टैग ने क्या किया, बीआर टैग यहाँ लगा तो इसने इस लाइन को पार्टीशन कर दिया। एक लाइन ये बना दी और एक लाइन इसने ये बना दी, यानी कि लाइन पार्टीशनिंग का काम बीआर टैग ने कर दिया। सो बीआर टैग डजंट वांट अ क्लोजिंग टैग, ओके। सो बीआर टैग इज बेसिकली एन ओपनिंग टैग विच डजंट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट दैट कि बीआर टैग को क्लोज क्यों नहीं करते हैं, बाकी सारे टैग को तो हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी टैग्स हमने एचटीएमएल पढ़े, दे ऑल आर क्लोजिंग टैग। ठीक है, बस एक टैग जो अभी हमने पढ़ा है नया, बी आर टैग, दैट इज लाइन ब्रेक टैग, वो ही एक ओपनिंग टैग है। ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो बी आर टैग का बेसिकली काम होता है कि भैया कहीं पे भी लग जाए वहां से लाइन को दूसरी लाइन में भेज दो। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग बी आर टैग ओवर हेयर, सो ये क्या कर देगा, लाइन को दूसरी लाइन में भेज देगा। यू कैन सी द डिफरेंस इन द वेब पेज। ओके, I hope you guys got that particular point. So this is basically for the today's video, guys, in which we cover the heading tag and its attribute, paragraph tag and its attribute, and the line break tag also. Okay. Now one more thing I have to show you is that basically to go to the browser, any browser can go, and you can just go in the MDN. Okay, MDN, okay, this basically, okay. So this is basically Mozilla developer environment, okay, MDN, and you can search here a lot of tags and its attributes. Okay, so if you guys basically preparing any web page and you just forget attributes, some attributes, you just forget some tag, okay, but you want to apply over here, you can search over here, you can search over the use over here of any tag over here. Okay, it's very easy to search in MDN. Okay, अब नाउ यू कैन थिंक दैट मैम टैग्स तो इतने ईजी है, ओके, एट्रीब्यूट्स इतने ईजी है, देन हाउ वी कैन फॉरगेट दैट। ठीक है, हम क्यों भूलेंगे। ओके, अब और नीड क्या पड़ेगी एमडीएन में सर्च करने की। सी बेसिकली अभी आपके पास लिमिटेड टैग्स है। अभी मैंने आपको लिमिटेड टैग्स बताया, बहुत ही कम टैग्स बताया, बहुत ही कम एट्रीब्यूट्स बताए, बट जैसे जैसे कोर्स आगे ग्रो होगा, एचटीएमएल में टैग्स पढ़ेंगे, आपके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, सो रिमेंबरिंग ऑल दीज इज अ लिटिल बिट बिग टास्क। ठीक है, अगर आप डेली उस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, but if you not remember and you just forget about that particular, so you can search in the MDN. Okay, you can search about that particular, if you want to search about the heading tag and paragraph tag. Okay, you can just go in the MDN, you can just see the first link is for the MDN, you can see the second link is for MDN. ठीक है, सो MDN पे आप सर्च करके देख सकते हो कि क्या काम है। ठीक है, अगर आप जस्ट फोगेट, मतलब थोड़ा सा भी आप भूल रहे हो तो यार बहुत छोटा सा टैग है पैराग्राफ टैग, तो इसको आप क्या ही भूलोगे, बट मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर आपको रेफर करना है तो आप MDN रेफर कर सकते हो, आप गीक्स फॉर गीक्स रेफर कर सकते हो, यू कैन रिफर्स कोडिंग निंजा, you can refer java t point, you can refer tutorial point, there are many websites. Okay, so देर नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि अगर मैं कोई टैग का एट्रीब्यूट भूल गई तो क्या होगा। यू कैन जस्ट गूगल इट। ओके, बस आपको यूसेज पता होना चाहिए। यू कैन जस्ट गूगल इट, गूगल डाउन द टैग्स। ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट। ओके, आप इस पे पढ़ सकते हो, आपके टैक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें होगी, काफ़ी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एमडीएन पे भी, गीक्स फॉर गीक्स पे भी आपको मिल जाएंगी, कोडिंग निंजास पे भी आपको मिल जाएंगी, और देयर आर मैनी मल्टीपल साइट्स लाइक दैट। ओके, I hope you guys got it. So this is basically for the today's video, guys. We will meet you in the next video. I hope you guys like that particular video. So if you guys like that video, please don't forget to hit the like button, share button, and subscribe button. We will meet you in the next video. Thank you.